Salmon fish has a very interesting life cycle. After surviving challenges in the sea, the fish leaves for the estuary to fight one final battle to return to the place it spawned. Death manifests in the form of a bear waiting to devour the fish while it struggles against the current. The salmon still takes a leap of faith to cross waterfalls through the mountainous course. Once it reaches the place of its origin, that is, the mouth of the river, it gives birth to its offspring, completing the life chakra. Such is the story of two climbers, Madhu and Kumar. It's like everything, it's a bit of challenging. I hope everything goes well. I'm looking forward to success. I'm from south side, he's from north side, still is we mingle. There is a language problem also, it's not matter. We will be stick together all the time. Right now he's like one of the top climber in India. I say like he climbs better than me. Like he put lots of effort. I seen him like from last 4 years he's doing good only, especially in the outdoor. He's getting success all the time. Whatever he choose the routes, he wants to send it. He called me once. I was a bit of confused about this project. I didn't know about anything. Like I didn't know the proper information also. Just I don't know. He chose me because maybe I am the best for him right now. अकॉर्डिंग टू मी क्लाइंबर्स की शायद सबसे बड़ी वीक पॉइंट होता है उसका एरोगेंस. सो मुझे ऐसा लगता है मधु में ऐसा कुछ भी नहीं है. मधु और हमारा रिलेशन पहले से बहुत अच्छा, जब से हम 2011 में साथ में मिले हैं क्लाइंबिंग ट्रिप में बदामी में, और हमने अपने लाइफ का फर्स्ट 8A भी साथ में किया है. वो भी समसारा था एक्चुअली. सो और अभी भी हम समसारा के लिए जा रहे थे. समसारा इज़ निर्वाणा काइंड ऑफ लाइक संसार का निर्वाण. सो काइंड ऑफ टीम वर्क की मुझे ज़रूरत थी, तो शायद उससे ज़्यादा ट्रस्टवर्थी बंदा मुझे अभी तक मिला नहीं है. और वो बहुत काम है, सिचुएशन हैंडल करना बहुत अच्छे से जानता है, बहुत हेल्पफुल है. और जैसे कि हम इस बिग वॉल प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं जो कि समसारा इज़ निर्वाणा, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमें डिफरेंट सिचुएशन फेस करना पड़ेगा, और उसे सिचुएशन को फेस करने के लिए बहुत काम पर्सनैलिटी की ज़रूरत है. तो मुझे ऐसा लगता है मधु परफेक्ट पार्टनर है उस चीज़ के लिए. सो यही एक रीज़न है कि मैंने उसको एज अ क्लाइंबिंग पार्टनर चुना है. अब चले गया.
हो गया? बहुत लंबा रास्ता, क्या कोई नहीं, करूं? जाके रेस्ट करो अभी, कल लंबा ट्रैक है। लंबा ट्रैक है। समसारा इस निर्वाणा जो कि खानक वैली लद्दाख में पड़ता है, जो कि बहुत ही रिमोट एरिया है। हमें अपना सामान खुद उठाना था एक्चुअली, सो वो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। 25 to 30 kg तो था ही एक्चुअली। मुझे तो वही टेंशन थी हमेशा कि मैं अगर वहाँ तक पहुँचूंगा तो शायद मैं उतनी एनर्जी पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी। फिर लकीली हमने म्यूज़ मिल गए, सो फिर हमने सारा सामान उनके थ्रू एक्चुअली भिजवाया, तो हमने कहीं ना कहीं आज अपना एनर्जी सेव किया एक्चुअली। सो वो हेल्प होएगा हमारे कल के क्लाइंट के लिए और मेरी परसों के क्लाइंट के लिए। आज मैं घोड़ों को लीड कर रहा हूँ, मैं घोड़ों की रेस में शामिल हूँ। According to the plan, actually we didn't carry our bags. For me, it's a little bad thing. Actually, we supposed to carry. जब हमने 4.5 घंटे का ट्रैक फिनिश किया और फर्स्ट जब हमने उस पीक को, जब आप जाते हो ट्रैक करके, तो वो फर्स्ट में स्टार्ट से ऊपर का पार्ट, फिर धीरे 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 I was looking for this kind of route from like last 3 years. This will be like another step for me actually. Maybe if I succeed, this road will be totally I change. I think I'll be like maybe more famous in India, and then I'll be more like confidence for the next level project or some other routes. When you see it's a different, when you do it's a different actually. We are right now in the base camp, but when we go up, then only we know the like how hard is the road, how long is the road. Without finishing this, we won't get back to our cities. करीबन 10 साल पहले स्विस टीम ने इसका फर्स्ट असेंट किया था और ये हाई ऑल्टीट्यूड में बिग वॉल क्लाइंबिंग का कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क सेट हो गया था। ये रूट रनआउट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप अनसेफ रहते हो, जिस वजह से आपके फॉल के चांसेस बहुत हाई होते हैं। शॉर्ट रूट अलग होता है, बिग वॉल का रूट अलग होता है। जैसे कि शॉर्ट रूट कुछ मीटर्स का होता है और बिग वॉल में ये स्केल बहुत हाई होता है, आपको फिजिकली के साथ साथ मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है और ये चीज़ मैंने लास्ट ईयर रियलाइज़ किया। 2016 में जब मैंने ये अटेम्प्ट किया था तो उस वक्त मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रहा था। तो जब मैं 11th पिच पे पहुंचा तो कह लो कि पूरे दिन की क्लाइंबिंग के बाद 1 डे में मैं ट्राई कर रहा था, तो बहुत थके हुए थे और ऐसा, तो एनर्जी भी ख़त्म हो चुकी थी। मेरी गलती हो गई, मैंने डाउन देखा उस वक्त ना, तो वो डाउन देखते ही मतलब माइंड ऐसा हुआ कि ओह मैं तो बहुत ही ऊपर आ गया। बहुत ट्राई किया कि मैं फ़ाइट करूँ उस चीज़ से, लेकिन एट दी एंड मैं इतना थका हुआ था कि मैंने गिव अप कर दिया। मतलब मेरा फॉल हुआ और वो फॉल इतना बड़ा था कि मुझे आज भी मतलब माइंड में है कि हाँ मैं कैसे गिरा था और मैंने कैसे सेव किया अपने आप को। और उसके बाद हम जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने फिर मुझे ऑपरेशन के लिए बोला, जिसमें कि अभी मेरे पाम में अभी स्क्रू भी है। तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आपको 2 साल का वेट करना पड़ेगा और 2 साल में मतलब एथलीट के लिए एक ऑलमोस्ट एंडिंग जैसा ही हो जाता है। तो वो चीज़ें मैंने सुन के मैं कहीं ना कहीं बहुत डिमोटिवेट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे में बहुत मोटिवेशन भी आया बाद में। मैंने उसके बाद ही डिसाइड किया कि मैं शायद क्लाइंब नहीं कर सकता, लेकिन और चीज़ें तो कर सकता हूँ। इंजरी के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप अनफिट हो जाते हो। तो मैंने प्लान किया कि अगर मैं और कुछ नहीं कर सकता तो मैं फ़िज़िकल चीज़ों पे वर्कआउट करता हूँ। तो मैंने टाइम टू टाइम, जैसे कि मैं कोर्स करने गया, माउंटेनियरिंग कोर्स, जिसमें आपको हाथ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती।
फिर मैंने काफ़ी एक्सपीडिशंस भी किए। मैं ले गया क्योंकि मुझे एक्लिमेटाइज़ होना था और अपने समसारा के लिए प्रिपेयर होना था उस चीज़ के लिए। तो एट दी एंड मेरा प्रोजेक्ट वही था, लेकिन उसके लिए मुझे अलग अलग हर्डल्स क्रॉस करके पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट होगा कम बैक करना, और मैं कर पाऊँगा या नहीं। जैसे फर्स्ट डे हमने अटेम्प्ट ओके था, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा। जब मैं फर्स्ट पिच इवन क्लाइंब कर रहा था तब भी मेरे माइंड में वो 11th पिच का ही चल रहा था कि वो मूव कैसे निकलेगा जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन जब हमने क्लाइंब स्टार्ट किया तो सडन वो वेदर इतना ज़्यादा, बारिश स्टार्ट हो गई। मैं सोचा था ले ड्राई एरिया बोल के, वो बारिश नहीं होता, वो पेड़ नहीं होता है, ऐसा सोचा था। फिर भी पता नहीं बारिश आ गया। बारिश आके वाटरफॉल भी हमारा ऊपर गिर रहा था फर्स्ट पिच में, उसकी वजह से हम लोग आगे नहीं जा सका। तो हमें ना चाहते हुए भी हमें बार बार नीचे आना पड़ रहा था। पहले तो ऐसा लग रहा था कि हम शुरू के 2 दिन की यार हम फर्स्ट पिच ही नहीं कर पा रहे। थोड़ा दिन पहली बार देखा, कुछ नया, ये पहली डर नहीं लगता देखने डर तो बहुत लगता कल पर से ऊपर गया बहुत डर लगा। सीना आ रहा था हाथ में। बहुत मुश्किल से चढ़ा ऊपर। हमने सोचा ऐसे गिर जाएगा। आप लोगों ने भी क्लाइंबिंग कर लिया ना। अकॉर्डिंग टू मेरा क्लाइंबिंग स्टाइल, मैं हमेशा फर्स्ट पिच में सेकंड लास्ट हैंगर से मैं हमेशा लेफ़्ट जा रहा हूँ अराउंड 9 to 10 मीटर्स, और उसके बाद मुझे राइट में उतना ही आना पड़ रहा है। सेकेंड ट्राई में जब मैं वहाँ तक गया तो मैंने रियलाइज़ किया कि जहाँ से मैं ट्राइवर्स करता था वो मैच करके मैं जाता था। तो इस बार जब मैं क्लाइंब कर रहा था तो वो पूरा फ्लेक बाहर आ गया, और उसके बाद मुझे लगा शायद ये इम्पॉसिबल हो गया इस साइड से क्लाइंब करना है। लेकिन उसके बाद मधु ने फिर उसे स्ट्रेट क्लाइंब किया, जो कि हमारा फर्स्ट पिच क्लाइंब हुआ था। एक फॉरेनर था, इसने बोला ये तुम्हारा प्लेयर है, बोल दिया मेरे के लिए। फर्स्ट जाना लीडर का थोड़ा अलग फीलिंग होता है और फॉलोअर का अलग फीलिंग होता है। मेरे के लिए वो मन में था शायद मैं पीछे रहूँगा फॉलोअर करके, मेरे के लिए वो मौका नहीं, इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा मेरे के लिए। उस टाइम मैं सोचा मैं भी चढ़ना है थोड़ा बहुत, मेरे के लिए अच्छा फील होगा बोल के उस टाइम डिसाइड किया चढ़ने के लिए। एक्चुअली मैं फॉलोअर नहीं रहूँगा, थोड़ा चढ़ने के लिए थोड़ा आगे जाऊँगा बोल के। खत्म हो गया। फर्स्ट पिच में लास्ट बोल्ट में वोल्ट्स नहीं था उतना, थोड़ा बहुत वो फ्रिक्शन क्रिस्टल बोलता शायद, पता नहीं, वो पकड़ के ब्लाइंडली ऐसे ब्लाइंड में चढ़ गया वो लास्ट वाला। जैसे ही फर्स्ट पिच मधु ने लीड किया, हमने बोला कि अब हम अकॉर्डिंग टू प्लान करेंगे। तो फिर सेकंड पिच मधु ने लीड किया, थर्ड पिच मैंने लीड किया। बहुत जल्दी हमने क्लाइंब करने की कोशिश की और हुआ भी सक्सेसफुली। हम 8th पिच तक बिना फॉल किए हम 1 गो में गए थे। जब हम ऊपर जा रहे थे तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मधु है ना बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर था
कि आप बोल रहे हो कि ओके तू लीड करेगा, वो रेडी, हाँ मैं करूँगा। पर्सनली कई बार मैंने पूछा भी कि मैं करूँ, लेकिन मधु ऐसा था कि नहीं मैं करता हूँ। मैं नीचे ज़्यादा नहीं देख रहा था, लेकिन आगे आगे, लेकिन वो फ्लो में जा रहा था मेरा, क्योंकि मेरे के लिए फर्स्ट टाइम तो है, लेकिन और लंबा भी है, 60 मीटर 50 मीटर है ना, एक फ्लो में जाता है। टीम सबमिट कर दो। एक्चुअली सब लोग वॉक करते हैं एक ही बार। बैक का अंदर जोड़ते हैं, एक बार पुल करते हैं बस एक पिच तक, एक रस्सी निकल के डाल देते हैं उधर, नेक्स्ट ऐसी। रोप बहुत ज़्यादा है ना अपने पास, हैवी हो रहा है, इतना रोप कैसे खींचेगा उसमें, स्पेशली ये रॉक फॉर्म जो है ना उसमें रोप फंसता है, ये फंसता है सामान, कपड़ा तक फंस जाता है, मेरे तो फटा भी है। और हमारी बॉन्डिंग एक्चुअल में बहुत अच्छी थी कि हर पिच के बाद हम ऊपर आ रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे अब क्या करना है। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप बाहर हो लेकिन आपका पार्टनर जो है वो गॉर्ज में ऐसे अंदर अंदर अंदर, ऐसा कोई कोड भी हमने प्लान नहीं किया था उस वक्त, तो समझ नहीं आ रहा था कैसे मतलब उस संभाले। लेकिन वो एक होता है कि क्लाइंबिंग स्टाइल है कि वो रोप जैसे ही टाइट आएगी उसे और लूज़ कर दो, मतलब कि उसे रोप चाहिए, तो वो एक कह लो क्लाइंबिंग कोड जैसा था जो हमें थोड़ा पता था, वो हमने यूज़ किया उस वक्त ना। ये बात है 6th पिच की, जहाँ पे मधु ने डिसाइड किया कि वो लीड करेगा। सिर्फ ब्लाइंड ट्रस्ट में, कुछ होगा तो नीचे मेरा पार्टनर है वो टेक केयर करेगा बोल के ऐसे ब्लाइंड चढ़ के जा रहा था। मधु क्लोज टू 7 पिच के मतलब ब्लेस स्टेशन के पास गया और वो सडन मुझे बोलता है कि मुझे 10 या 15 मीटर्स पे ब्लेस स्टेशन दिख रहा है, क्या इनफ रोप है? और उस वक्त मुझे बस इनफ रोप ही सुनाई दी थी, तो उस वक्त मैंने कहा अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं रोप का एंड पकड़ के था और वहाँ पे 10 मीटर के आसपास वो रोप कम पड़ गई थी। मैंने रियलाइज़ किया कि जो नेक्स्ट हैंगर है वो 15 मीटर के आसपास पे है रन आउट, तो बेटर है कि एक और रोप अटैच करो। और फिर मैंने एक्स्ट्रा 60 मीटर का जो रोप था वो उधर फिशरमैन लगा के और फिर मैंने उधर से ब्ले करना स्टार्ट किया। सही किया इसने, नहीं तो फंसने वाला था उधर। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मेरे के लिए भी थोड़ा वो हेल्प किया। If I say, Madhu, that you are very specific to things, will you agree to that thing or? Yeah, I agree because it's a life thing, no? We depend on this only, always. If this goes wrong, then we are gone. That's why I always double check. Before I was very lazy, but I had one accident. After that, I should prepare before getting into the auction. This is what we called climber jewelries actually. Look as he stretches his beautiful wings, ready to fly away to greener pastures. Steamroller! Steamroller! It's kind of like, I've never been a parent, but I can imagine maybe that's what it's like trying to get your child out of bed to go to school in the morning. They're moving now, which is good. They've had some poha for breakfast, some kali chai, and I think they're ready to go. हम थके हुए थे, लेकिन हाँ हमने किसी को बोला नहीं कि हम बहुत थके हुए हैं। जो टीम आई है वो हमारे लिए आई है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर हम ही गिव अप कर देंगे तो फिर बाकी लोग जो इतने मेहनत करके वहाँ तक आए हैं उनकी भी मेहनत कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगी।
वो पत्थर लेकिन वो फ्लेकी रॉक गिर के है ना, वो जाने के टाइम में नीचे देख रहा था बहुत बार। वो तो टक टक करके जा रहा था हर बार। उस टाइम हम लोग भी गिरा तो ऐसे ही जाएगा, टक टक करके जाएगा बोल के। पर्सनली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि जब आप बिग वॉल या कुछ मतलब ऐसा कर रहे हो तो आप है ना पीछे मत देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है। जहाँ आपने पीछे देख लिया वहाँ आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें आने स्टार्ट हो जाएंगी। मैं जब क्लाइंब करता हूँ ना तो मैं ना ऊपर जाने की प्लानिंग करता हूँ हमेशा। ऐसा नहीं कि यार इधर नहीं हुआ तो नीचे ही जाना है, नहीं, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढो ना उस चीज़ के लिए। राइट में मधु, राइट जाएगा ना, अंदर की साइड है थोड़ा। बिग वॉल में आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेरा खुद का फॉल हुआ था लास्ट ईयर, उसमें एक्सीडेंट भी हुआ था। तो मेरे माइंड में हमेशा एक चीज़ थी कि मुझे रियलिटी पता है कि कहाँ से फॉल हो सकता है और क्या चीज़ है। तो हमेशा मेरे माइंड में ऐसा था कि उसको सेव करना है, मतलब मेरी ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा। और मैं उसे हमेशा ट्राई कर रहा था कि मैं मोटिवेट करूँ उस चीज़ के लिए ना। मधु नीचे एक छोटा सा स्पेस है वहाँ बैठने का, कोने में, वहाँ पे प्ले स्टेशन है। तो उस वजह से मैंने सोचा कि मैं बेटर है कि नीचे रहूं और मधु लीड करे और मैं उसे गाइड भी कर सकता हूं कि कैसे जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग, और सडन उसने जब वो जहाँ मेरा फॉल हुआ था वहाँ वो पहुँचा और वो पूरा मतलब काँपने लग गया, क्योंकि मतलब उसको पता चल गया था कि मेरा फॉल यहीं से हुआ है, क्योंकि मेरा क्विक ड्रॉ वहाँ पे था। एक्चुअली पता नहीं कुमार गौरव ने 11th में फाल लिया बोल के वो बाद में बोला एक्चुअली मेरे के लिए चढ़ने के बाद। उस टाइम थोड़ा डर लगा मेरे के लिए, अगर भी नहीं मिल रहा है आगे किधर जाना है। उसका फॉल सेम प्लेस पे हुआ जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था लास्ट ईयर। वो पहले फाल था एक्चुअली बोला तो, मतलब बड़ा लंबा था तो इसीलिए डर लगा। बाद में उसको पूछा मैं चढ़ो, मैं मेरे के लिए नहीं हो रहा है ये। तो मैंने बस ऐसा ही इग्नोर कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने इसे कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा फॉल और ऊपर से हुआ है, मैं इसे झूठ बोल रहा हूँ। तो मैंने इसे बहुत कोशिश किया वहाँ पे कंट्रोल करने का, मतलब कि ओके हम रेस्ट करते हैं यहीं पे। हमारे पास सिर्फ ½ लीटर ORS था और ½ लीटर की एक बॉटल थी जिसमें पानी था। सिर्फ क्लाइंबिंग टाइम के लिए था वो, हमने ऊपर रुकने के लिए मतलब एक्स्ट्रा कैरी नहीं किया था। तो जब भी हमें प्यास लग रही है कुछ तो हम सिर्फ काउंट कर रहे हैं और उस हिसाब से पी रहे हैं कि पता नहीं नेक्स्ट डे जो क्लाइंबिंग करना है हमें उसके लिए भी चाहिए। हाँ मतलब बिग वॉल में आपको 5 स्टार के मज़े तो नहीं मिलेंगे। उस टाइम बहुत गुस्सा आएगा, पूरा रात नहीं सो पाया एक्चुअली। क्यों नहीं हुआ, इतना करके आया क्यों नहीं हुआ सोच के हम लोग उसका पहले बात कर रहा था थोड़ा बहुत। पर्सनली फील किया, शायद मधु ने भी किया होगा, कि हम लेज पे बैठे थे और उस दिन हम बहुत ऐसा अकेला फील कर रहे थे। तो मुझे ऐसा कई नेगेटिव चीज़ें भी आ रही हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ है ना बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोजेक्ट प्लान किया है क्लाइंब करने का, लेकिन क्या करें ज़िद्दी है। और नीचे तो थोड़ा हमारा बेस कैंप से थोड़ा वो कैंप फायर भी दिख रहा था, तो थोड़ा लेकिन स्टार का ऐसा छोटा सा स्टार का ऐसा दिख रहा था ऊपर से। और हम वो मिस कर रहे थे वो टाइम कि क्योंकि ऊपर इतना ज़्यादा ठंड था, हम उस चीज़ को ही पूरी रात देखते रहे। ये एक टाइम होता है जिस वक्त आप अपनी बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करने का आपको मौका मिलता है। हमने काफ़ी डिस्कशन भी किया, काफ़ी चीज़ें कि हम ये कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में काफ़ी बात किया। तो हमारा रिलेशन और कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ था उस वक्त। मैं हमेशा पूरी रात सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा। तो लेकिन नेक्स्ट डे जब हम उठे तो मैं बहुत सरप्राइज़ था कि मधु ऐसे बोलता है चलो क्लाइंबिंग करने चलते हैं। तो मैंने कहा ये मतलब वही मधु है जो कल था या क्योंकि उसके माइंड में एक चीज़ था कि उसने मुझे स्टार्ट में बोल दिया था कि कुछ भी हो
हम दोनों में से कोई डाउन नहीं जाएगा। मेरा दिमाग में बहुत क्लाइंबर उस टाइम आ गया, अलेक्स अर्नोल्ड आ गया मेरा दिमाग में, वो लोग कैसा चढ़ते हैं, वो लोग सोलो चढ़ जाता है वो लोग। उन लोग लेवल में तो नहीं है लेकिन सोच सकते हैं वो लोग कैसा चढ़ते हैं, क्रिस शर्मा कैसा चढ़ते हैं, सोच के उन लोगों से भी थोड़ा मेरे के लिए बूस्ट मिला। ख़त्म करना है, हम लोग इधर तक तो आ गया, ऐसे नहीं जा सकते बोल के। लास्ट 3-4 पिच में हमें ऐसा लगा कि ये टॉप होगा, ये टॉप होगा, लेकिन जब हम ऊपर पहुंच रहे तो उसके ऊपर भी हमें रॉक दिख रहा है। हाँ, ये सबमिट नहीं है। तो फाइनली जब मैं 16 पिच तक पहुंचा तो मधु ने मुझे बोला 17 तुम लीड करो। तो मैंने बोला कि मतलब अगर इतना आपने एफर्ट लगाया तो मैं चाहता हूँ कि लास्ट पिच भी तुम लीड करो, जो कि मुझे खुद पर्सनली अच्छा लगेगा। मतलब फाइनली इतने टाइम के हार्डवर्क के बाद हम जब सबमिट पे पहुंचे तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मधु बहुत एक्साइटेड था। उधर पहुंचने के बाद वो अलग तरीका फीलिंग है वो एक्चुअली, लेकिन बहुत खुश हुआ। कुमार गौरव ने क्या सोचा था वो हो गया, मैं भी क्या सोचा था वो भी हो गया। मेरे लिए ऐसा था कि वो मेरा ड्रीम था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मैंने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया था जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बियॉन्ड माई लिमिट्स ऐसा कुछ था, और लेकिन वो पॉसिबल हो गया सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। बहुत लोग ये वेट कर रहा था रूट ख़त्म करने के लिए, इनका पूरा कनसू, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कनसू का ड्रीम, बहुत लोगों के लिए ड्रीम वो सक्सेस हो गया, क्योंकि वो दिमाग में था मेरा। लेकिन सपोर्ट भी दिया था उस टाइम, वो पूरा मैं याद आ रहा था मेरे के लिए, मैं दिमाग में आ रहा था, वो लोग सब मेरा साथ में था, इसलिए हुआ, नहीं तो नहीं होने वाला था बोल के वो सारा आ गया, मेरा पापा मम्मी और दोस्त लोग भी। मुझे एक ऐसा लगा कि मेरे अंदर का एक क्लाइंबर रीबॉर्न हुआ है, और मैंने मेरे जो खुद के चैलेंजेस थे वो मैंने मतलब कंप्लीट किए हैं। मतलब मैं उस खुशी को बयान नहीं कर सकता आज के टाइम पे, ऐसा है। और लेकिन जैसे ही हम टॉप पे पहुँचे मेरे माइंड में मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ चुका था कि अब मुझे अगला क्या करना है। तो क्योंकि वो कहते हैं ना, क्लाइंबर्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते अपने परफॉर्मेंस से, उनको और चाहिए, तो ये भूख जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।